گزری شب کسی خواب سے کم نہ تھی، وہ بھاری ہوتا سر دونوں ہاتھوں پہ گرائے کمزور لہمے کی گرفت میں آنے پہ خود سے ناراض بیٹھی تھی۔ دلہام گنگناتے ہوئے نقصد سے تیار آج کی ضروری میٹنگ کے لیے ریڈی تھا جب انا نے ایک کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ دلہام دبے اس قالین پہ چلتا اس کے قریب آیا تو انا نے رخ موڑ لیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کی ٹھوڑی تھامے انا کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ وہ دانت کچکچاتی ایک بار پھر سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طویل سفر کے بعد جب پڑاؤ اچانک سے سامنے آ جائے تو یقین مانو اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ میٹھی نگاہوں کا احساس اس کے گرد باندھتے ہوئے بولا تھا، آپ یہاں سے چلے جائیں دلہام، وقت ایسا نہ ہو میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ وہ غررائی تھی۔ دلہام کی نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی تو وہیں کم خوابی کا پتہ دیتی سرخ آنکھیں اسے جی جان سے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کو تمہارا بہترین پلان ہے میرے پاس اناتل، لیکن یہ میٹنگ بھی ضروری ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ جو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، رنگ ہوتے سیل نے اس سے سحر کو توڑا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ایک ہاتھ سے اس کے رخسار تھپتھپاتا اس کے سر پہ لپ رکھتے پیچھے مڑ گیا۔ آنند نے پاس میں پڑے تکیے اٹھا کے دروازے کی جانب اچھالے تھے، ساتھ میں ہاتھ پڑتے سائڈ ٹیبل پر بڑی چیزیں گرائیں، لیکن اس کے وجود پہ لگی اس کے نام اور محبت کی چھاپ ایسی نہ تھی کہ اس کے غصے میں بہہ جاتی۔ میٹنگ میں پہنچنے سے پہلے وہ میڈیا کی نظروں میں آیا تھا جب اچانک سے ہونے والے سوالات کسی تابڑ توڑ حملے کی طرح اس پہ برسنے لگے تھے۔ کیا یہ بات سچ ہے سر کہ آپ کی بہن آپ کے پی اے کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ سر درید بخت اور ان کی وائف کی بخت حویلی سے مسلسل غیر موجودگی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سر آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ اس ٹو مچ یار، ہٹاؤ ان لوگوں کو۔ گاڑی سے اسمبلی تک پہنچنے تک وہ ان گند لوگوں کے سوالوں کا نشانہ بنا تھا، وہیں اپنے مختص روم میں پہنچتے ایک اور شوق اس کا منتظر تھا۔ وہ بار بار پیشانی مسل رہا تھا جہاں سامنے پڑی فائل واقعی میں اس کے دماغ کے پرخیچے اڑا چکی تھی۔ کون چھاپ رہا ہے یہ بکواس چیزیں؟ کیا ہے یہ سب؟ جن اثاثوں کا حساب گورنمنٹ مجھ سے لینا چاہتی ہے وہ آبائی تقسیم میں ہے تو بھلا یہ سب کیوں؟ اس کا ذہن واقعی تھکان میں ڈوبا تھا، تبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپوزیشن کی طرف سے کئی ایک حلقوں میں دھاندلی کے ساتھ ساتھ اس کی جائیداد پہ بھی سوال اٹھائے گئے تھے جو پورا وقت ان معاملات کی جانچ پڑتال میں گزارنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ حریفوں کے ہاتھ اس کے نجی معاملات میں دخل اندازی کا بھی مدعا لگا تھا۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوا تو خیر سناٹوں نے اس کا ویلکم کیا تھا۔ یہی حال اس کے روم کا بھی تھا۔ جب انا نے بے وقت سوتی دکھائی دی تو اسے پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ ایک ہی وقت میں اسے تمام لائٹس آن کی تو اندازہ ہوا وہ جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا نادل، اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی؟ وہ کوٹ ایک طرف کو پھینکتے ہلکے پھلکے انداز میں بولتے اس کے قریب لیٹنے اور بیٹھنے کی پوزیشن میں دراز ہوا تھا۔ انا نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ مزاج دشمنہ ابھی تک برہم ہے، اس کا مومی ہاتھ پکڑے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ اس کا نور اٹھا سا انداز ایٹیٹیوڈ لیول دلہام کی ساری کثافت بہہ کے لے گیا تھا۔ اس کا ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے پہلو میں انتہائی قریب گرایا اور اپنی انگلیاں اس کے سر پہ چلانے لگا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے گہری خاموشی چھائی تھی۔ اب تک جو ہوا ہے نادر، ہم نے اپنے لیے جتنے فیصلے لیے وہ دو طرفہ غلط فہمیوں کا نتیجہ تھے، یہ محض جذباتیات، ورنہ یہ تو تم بھی جانتی ہو جب یہ رشتہ نہیں تھا تو ہم دونوں کی چاہت تھی یہ رشتہ بنانے کی، اور اگر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی تو ہم نے اس رشتے کی بہت ناقدری کی ہے نادل، شاید ایک دوسرے کی بھی۔ وہ اس کی ہتھیلی کی لکیروں میں اپنا عکس تراشتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دلہام کی نظریں اس کی ہتھیلی پہ تھے جبکہ انا کی نظریں دلہام وقت کے چہرے پہ اور بولتے لب جب اس کا دل دھڑکا رہے تھے تو ہر بار انا دل بولنے پہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے، تبھی نگاہوں کا رخ اس کے چہرے سے ہٹائے دلہام کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھوں پہ جمائی۔ میں اپنی طرف سے ہر ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جانتی ہو نا تم میری زندگی کا سکون ہو، ہر مایوسی میں خدا کی ذات کے بعد میں نے تمہیں معطر جانا ہے اور یہ رشتہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں نے تم سے پیار کرنا، وفا سیکھی اور لیکن نبھانے کا سلیقہ نہیں شاید۔ وہ بہت روڈ انداز میں بول گئی تھی، اپنی لے میں بولتا بولتا دلہام پر زور انداز میں چونکا تھا۔ انا ایک دم شرمندہ ہوئی اور وہ تو اس کی ہر بات کا جواب دل میں دے رہی تھی پھر لبوں پہ کیسے؟ دلہام کونی کے بل ذرا کو اڑتے اس پہ جھکا تھا۔ ہاں بے شک سلیقہ نہ آیا پر نبھایا تو بھرپور طریقے سے نہ، ورنہ میں اور تم اتنے قریب یہاں نہیں ہوتے۔
अना के बरक्स दिल्हाम का लफ़ व लहज़ा ज़ोमैनी अंदाज़ अपना गया तो वो इसे देखते, आँखें दिखाते थोड़ा पीछे खिसकने की कोशिश में थी। जब दिल्हाम ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसे खुद से करीब किया था। अन्ना की आंखों में खौफ नहीं था लेकिन नाराज़गी अपनी छप खूब दिखा रही थी। तुम शायद नहीं जानती हो ना ये आंखें अमृत जैसी है, लबों से लगते हैं एक अजब सा सुरूर देती है जो शायद ही किसी और चीज़ में हो। बिना इसकी नाराज़गी के परवाह किए दिल्हाम ने इसकी आंखों को चूमते हुए कहा, इस जैसी निडर लड़की भी दिल्हाम के इस अमल पर गुलजार हुई थी। फिर से दोस्ती नहीं हो सकती हमारे दरमियान। वो इसकी आँखों में झाँकते हुए पूछ रहा था। एक तरह से वो अना को अपनी आँखों और लफ्ज़ों के ज़रिए फिर से अपना असीर कर रहा था। इन दोनों की गुफ्तगू इतने अरसे बाद बिना तंज़ के तीर चला दिलकश अंदाज़ में हो रही थी। अना ने ज़ोर-शोर से नफ़ी में सर हिलाया था। इस शख़्स की वफ़ाएँ और फिर जफ़ाएँ, इसके बाद फिर से वफ़ाओं की दास्तान में सिर्फ़ एक ही शख़्स का नाम रकम था, वो थी अनादिल। लब आप ही आप मुस्कुराते दिल हम इसकी हर जंबिश पर निगाह जमाए हुए था। आज का दिन इसके सियासी करियर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा ना था, लेकिन घर आते हुए हमेशा वो दफ़्तरी मामलात पीछे रख के ही आता था। हाँ, हाँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। इसे खुद को तकने में मशगूल देखते तलहाम ने दख़ल दिया तो वो गड़बड़ाई थी। मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, लोगों की असलियत देख दे दुःख देती है। अना की बात सुनते दिल्हम का छत फाड़ा कहमा बुलंद हुआ था। चलो एक मौका देके तो देखो। वो शरीर हुआ। नहीं देना, दो टोक जवाब अना की तरफ से मिला था। अब भी नहीं, दिल्हम ने हल्के से इसके लबों का बूसा लेते कहा तो अना की हिम्मतें जवाब दे गई। इसका अंदाज मनाने वाला था, जीवन हारने वाला। उसके सीने में चुभती किसी बच्ची की मानंद रोती। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा दिल, मम्मा पापा के माजी से शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता और जो आप इस सब का हिस्सा ना बनते। ज़िद आपने लगाई थी अना की कैद में आप लाए थे मुझे। वो सुर्ख-होती नाक के साथ इस पे इल्ज़ाम धर गई तो दिल के लब आप ही आप मुस्कुरा दिए। हूँ जानता हूँ मेरी इब्तिदा को इंतहा भी आप ले गई थी मोहतरमा। एक बार भी हर चीज़ भुला के मेरे बारे में नहीं सोचा था। मैं खुद पे लगे हर इल्ज़ाम को मानने को तैयार हूँ। दिल्हा भी शिकवा कर गया तो अना इसे ताज्जुब से देखने लगी। वो कंधे उचका गया। मुझे पब्लिक प्लेस पे थप्पड़ मारा था। वो नाराज़गी का असल मदा सामने लाई थी। तुम मेरी नापसंदीदा शख़्स के साथ घूमोगी तो क्या फूलों की माला पहनाऊँगा? दुल्हान ने सरसरी अंदाज़ में वज़ाहत दी जिस पे अमल के लिए वो खुद शर्मिंदा था। इस पे खुल के बात कैसे कर सकता था? मुझे कुछ नहीं पता, वो उसके पहलू से उठते बोली थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ देर नाराज़गियों को दफ़न करते खामोशी से उकताए अंदाज़ में बोला ताकि अना की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से बच सके। मैंने भी अना ने नकाहत भरे अंदाज में कहा था। इसे बेड से उतरते ही बखूबी अंदाज़ा हुआ था कि इसके जिस्म में इतनी सकत नहीं रही वो 2 कदम आगे चल पाए। क्यों खानसमा था तो ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने को। वो परेशान हुआ उठा। बस मेरी मर्ज़ी। इसके जवाब पे दिल्हम को गुस्सा आया। कितनी लापरवाह थी वो खाने से भी तभी इसके मुकाबले आते कलाई थामी और किचन की तरफ बढ़ा था। आज शेफ़ दिल्हम वक़्त में अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाकर खिलाएँगे। दिल्हाम ने अप्रन पहना था जबकि वो चेयर पर बैठते से काम करता देखने लगी थी। थोड़ा-सा झुक के इन दोनों ने ही इस रिश्ते की डोर सँभाल ली थी। हाँ, आपकी कच अदाई से तो नहीं मरी, अपने हाथों का बस ज़ायक़ा खाना खिला के मारना चाहते हैं। नाक से अनदेखी मक्खी उड़ाते इसने कहा तो दिल्हाम को जैसे शौक लगा था। अनादिल, दिल्हाम ने मायूस-कुन अंदाज़ में से देखा तो वहाँ अना के कहकों की बहार उतरी थी जो दिल्हाम के अंदर तक मसरूर कर गई थी। इसी नोक-झोंक में वो इसके लिए खाना तैयार करने लगा था। मुझे कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें लेनी है तो रेत वो इसके सर पे पहुँची जो मैच देखने में मसरूफ़ था। ओके लिस्ट बना दो मैं ले आऊँगा। वो सरसरी अंदाज़ से मुद्दा फरहान का चेहरा खौफ़ज़दा हुआ था। मैं खुद लेना चाहती हूँ। वो उसकी बात का असर ज़ाहिर करते बोली थी। जब हर चीज़ जानती हो तो ज़िद क्यों? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ले आऊँगा फिर। आपके दुरत का अंदाज़ थोड़ा सख्त हुआ था। फरहान पाँव पट के वहाँ से निकल गई थी। वो दोबारा वहाँ आई तो दुरे टीवी ऑन किए सो चुका था। फरहान को अजीब बेचैनी सी होने लगी थी। तभी वो थोड़ी देर दूर टहलने का सोचते हुए बाहर निकल आई थी। अपनी सोचों में गुम फरहान को पता ही नहीं चल सका कि वो अनजान रास्तों में भटक गई है। जभी एक ब्लैक मिरर गाड़ी इसके पास आके रुकी थी। वो चौंकी इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती। सामने मौजूद शख्स को देखते फरहान का सांस थमा था। वेलकम टू माय वर्ल्ड माइकल। ख़बासत ज़दा मुस्कुराहट लबों पे सजाए शख्स की आंखों में इसे देखते चमक उभरी थी। फरहान को लगा वो अगली सांस लेने के काबिल नहीं रही जब एक अनजान सा लम्स इसे अपने वजूद पे रेंगता महसूस हुआ था और अगले ही लम्हा वो होश व खर्च से बेगाना हो चुकी थी।
इसे जब दोबारा होश आया तो इसके समान पुरसुकून ज़िंदगी का तसव्वुर मिट चुका था। हर तरफ वही हैबत बरसाते मुजस्मे और दीवारों पे लटकती अजीब व गरीब मखलूक की तस्वीरें इसके दिमाग को फिर मफलूज करने लगी थी। शुमार दरफ तुम लूसीफर के लिए थी और इसी के पास लौट आई हो। पास से आती आवाज़ पे इसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। कहा क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा आखिर? वो रोते हुए फरियाद कर रही थी। तुमने हमारे खुदा को नाराज़ किया लड़की। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद मैं तो जैसे उठ ही नहीं सका। एक तुम्हारी खातिर क्या क्या नहीं सहा। क्या मैंने और आखिर आज तुम मेरे पास हो। जीत आरजी की हुई। इसकी मुकरा हंसी पर पहाड़ ने चिरचिरी ली थी। वो रस्सियों में जकड़ी गई थी। एक बार फिर से खून की होली खेली गई, लेकिन अब के इसने अपने जिस्म से निचरता खून और लूसीफर की ज़ीनत बनते अपनी आँखों से देखा था। वो कमज़ोर हवास की लड़की ज़्यादातर ये सब नहीं देख पाई थी। पहाड़ों के दामन पे चमकता दिल और उसके साथ लिखा गया वेलकम टू मरी से हाउ की एक सेल्फी का मरकज़ ज़रूर बनता। दुल्हन का इसका हाथ थामे से रस्सी से ऊंची नीची ढलवानों चढ़ता इसे माल रोड लाया था, जहाँ स्नोफॉल के साथ ढाबे की बनी चाय पीने का शक इसे यहाँ खींच लाया था। इसकी नस्बत अना सर्दी की शिद्दत से काँप रही थी। ऐसे कौन करता है दिल चाय चाय ही पीनी थी मैं घर में बना लेती। इसने एक बार फिर इसे यहाँ आने पे नाराज़गी जताई थी। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा नादिल? इस ज़िंदगी से भरपूर सांस लेते वजूद बेफिक्री से मुस्कुराते चेहरे। दिल्हाम इसके हाथों को अपने हाथ में लिए इनके रगड़ते गर्मी पहुँचा रहा था। बहुत अच्छा लगता है ये सब दिल, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उदास सा है। उसके कंधे पे सर टिकाए बोली थी। इस वक्त वो दोनों ही सैर व तफरीह के लिए आए लोगों को देख रहे थे। आप दुल्हाम बख्तना फेमस पॉलिटिशियन, सामने से आती शरी लड़कियों के टोले में से एक ने रुक कर कहा था। दुल्हाम ने मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाया। ओ मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हमारे सामने हैं। गाइस मेट ये है हमारी नौजवान नस्ल के नुमाइंदे दुल्हाम बख्त। बहुत छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया है उन्होंने। वो लड़की जो दुल्हाम की मदह थी अपनी दोस्त के सामने भी इसकी मदह सराई करने में मशगूल थी। वो सभी दुल्हाम से हेलो हाय करने लगी थी। अना का दिल फिर से बेचैनी की चादर उड़ने लगा था। वो इधर उधर देखते वक्त गुजारी करने लगी जब इसका बीपी हाई हुआ था। जब दुल्हाम इस लड़की का हाथ थामे हंस हंस के कुछ कह रहा था। अना पाँव पटकती वहाँ से हटी थी। जब दुल्हाम की नज़र इसके बिगड़े नकूश पे पड़ी तो फ़ौरन इन लड़कियों से माजरत करता इसके पास आया था। क्या हुआ? वो इसका हाथ थामना चाहता था जो अना ने फ़ौरन से झटक दिया। अनादिल दुल्हाम को अपना हाथ झटकना जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तभी सख्त आवाज़ में कहा था। अना ने इसे बेबसी से देखा और उसके सीने पर सर टिकाया। दिल्हाम को इतना अंदाज़ा था कि वो उदास है, पर क्यों ये वजह तो इसे भी मालूम नहीं थी। दिल्हाम को बताती। कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ। वो पब्लिक प्लेस पे एक दूसरे में मगन से ठहरे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा आपका इस लड़की का हाथ थामना। अना ने बरमला इज़हार किया तो दिल्हाम के लबों पे मुस्कुराहट के लिए वो उसकी तरफ झुका था। जेलिस हो रही हो या मुझ पर एतबार नहीं है? वो पूछ रहा था। अना को अपना भरम भी रखना था। दोनों ही नहीं, बल्कि मुझे बस अच्छा नहीं लगा। इसने अपनी ज़ोर पे बात दिया तो दिल्हाम ने कुशन बजा लाते सरखम किया। ओके मादाम, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। हालांकि वो जस्ट ऑटोग्राफ लेना चाह रही थी मुझसे। दिल्हाम ने नामहसूस अंदाज में सफाई दी, पर अना की घुरियों पर सख्त कबीदा होते अपने कान पकड़े तो अना का कहकमा बेसाख्ता था। इसने बड़ी मुश्किल से ये मुस्कुराहट और कहकमे किस्मत से कशीद किए थे। वो इन्हें खोना नहीं चाहता था। वो एक स्टॉल पे रुका तो अना टहलते टहलते आगे बढ़ने लगी। जब भी मुखालिफ सिम से आता शख्स इससे टकराया था। वो चौंकी। ब्लैक हुडी में सरता पैर लपटे शख्स ने ज़रा सा हुडी कैप सर कराते एक मुस्कुराहट इसके जानिब उछाली थी। अना के लबों से मुस्कुराहट पल में समेटी थी जब इसने अना का हाथ थामे इसमें एक पर्चा पकड़ाया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। अनादिल वो गुमसुम सी सड़क के इस पार गायब होते शख्स को देख रही थी जब अपनी पुश से आती दिल्हाम की आवाज़ पे चौंकी। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? दिल्हाम ने इसे पास आते देखकर अपने बाजू के घेरे में लेते हुए कहा, जबकि इसका पसीना पसीना होता चेहरा दिल्हाम को चौंका गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो इसके माथे और फिर रुखसारों से अपनी हथेली मिस करता हुआ बोला था। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, घर चलें, मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। वो अपने चेहरे से दिल्हाम का हाथ हटाए अपने लजरते हाथों में लेते बोली थी। ठंड लग रही है तो चेहरे पे पसीना क्यों? वो उलझा था। अगर आपने ऐसे ही जरा करनी है तो मैं अकेली घर चली जाऊंगी। मुट्ठी में दबे पर्चे को मजीद दबाते वो लड़खड़ाते लहजे में बोली तो दलाम कुछ उलझते हुए इसे लिए घर वापस आ गया था। कुछ देर पहले तक तो वो नॉर्मल थी, फिर ऐसा अचानक क्या हो गया?
घर आते ही बिस्तर में दबक गई थी, जबकि दिल्हाम ने इसे ज़्यादा छेड़ना मुनासिब ना समझा। अना बेयकीनी का शिकार थी, जबकि मुकाबिल ताज्जुब भरी निगाहों से इसे देख रहा था। यही सच है अना, दिल्हाम की निगाह हमेशा से फरहान पे रही है, और उससे बड़ी सच्चाई और क्या होगी कि वो इनफ अगर मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। दिल्हाम बख्त क्या है, इनका क्या किरदार है, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ इन्हें। ओहो, जिसे दिल्हाम बख्त से मिले जुमा जुमा 8 दिन हुए, वो बचपन के दोस्त से ज़्यादा जाने की दावेदार है क्या? अगर ऐसा तो एक बार इससे पूछना ना, इसे क्या मसला है मुझसे और रम्स का निकाह मूसा से करवाना। तुम्हें मेरे साथ देखकर इतने शदीद रद्द-ए-अमल देना, कुछ तो दिमाग के पर्दे खोलो ना अना बीबी। वो बिना इसकी गिरज चमक का नोटिस लिए तसल्ली से दोनों बाजू थे सीने पर बांधे इसे बखौर देख रहा था। जो सादा करती के साथ घेरदार ट्राउज़र और एक लंबा सा दुपट्टा लिए वहाँ मौजूद कई तरहदार लड़कियों से मुनफरद दिखाई दे रही थी। वो आरजे से मिलने आई थी, जो कि इसने अपना सेल ऑफ कर दिया था, इसलिए आरजे ने शायद फ़ॉलो किया था और मिलने का पैगाम दिया था। मुझे इनसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, जब मुझे पता है कि ये सरासर बकवास है। फरहान और रम्ज़ के लिए इसके लिए बच्चों की तरह है। और हाँ हाँ, मुझे पता था तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगी। कुछ प्रूफ़ लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, चाहो तो घर जाके तसल्ली से देख लेना इसे। इसने एक पेन ड्राइव इसे पकड़ाई थी। अना ने कहर बरसाती नज़रों से इसे देखा और बिना ड्राइव लिए जाने को मुड़ी थी। ये मौका हर बार नहीं मिलेगा मिसेस अना दिल्हाम बख्त। जिन राज़ों की खोज तुम यहाँ तक आई हो, वो यकीनन मेयर्स बन के तुम्हें बेसकून रखते होंगे। आरजे की आवाज़ पे इसके कदम रुके थे। एक खोजती निगाह इस पे डाली तो क्या इसका चेहरा इतना बोलता था कि उसकी बेचैनी को भाग गया था। आरजे ने कंधे उचकाते हुए ड्राइव अपनी पॉकेट में रखना चाही थी, जब वो तेज़ी से इसके पास आई और पेन ड्राइव लेते भागते कदमों से वहाँ से निकली। दिल्हाम के भेजे बंदे ने इसे टैक्स भी छोड़ा था, जबकि वो अपनी मीटिंग्स में बेतहाशा मसरूफ़ था, जिसकी बिना पे वो कुछ देख नहीं पाया था। घर आते ही अना ने इस ड्राइव को सख्ती से थाम रखा था। जाने क्या राज पोशीदा था इसमें। धड़कते दिल से वो फ़ौरन लैपटॉप लेकर बैठी और ड्राइव ओपन की, जहाँ कई एक शॉर्ट लिस्ट मौजूद थे। भाई हमारी मोहब्बत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फरहान इन्हें नहीं मिली। सामने मौजूद लड़की और उसकी बात ने अना के हवास शल किए थे। हर वीडियो ही अलग थी, जहाँ रम्स और कहीं फरहान मौजूद थी। एक तस्वीर में नींद भराना वजूद लिए फरहान दिलाम के गले लगी हुई थी, जहाँ पर फरहान का चेहरा वाज़ेह था, पर दिल्हाम का साइड पोज ही दिख रहा था। एक से एक बढ़कर एक तस्वीर, और आखिरी वीडियो ने जैसे सांस साकिन कर दी थी। बेशर्मी की हद को पार करते रम्स और मूसा। अना का दिमाग पूरी तरह स्ट्रिक हो चुका था। ये थे दिल्हाम बख्त के राज, जो अना से छुपाते वो अपने घर वालों अपने राजों को तदफीन चाहता था। और आरजे वो चंद तस्वीर जो आरजे और दिल्हाम के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दौर की थी, जो इन्हें बेहतरीन दोस्त साबित कर रही थी। अना का दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था, चेहरा आंसू से दरपदर था। अगले ही लम्हे इसे लैपटॉप को उठाए दीवार पे मारा था। दिल्हाम का ये कौन सा रूप था, और फरहान रम्स मूसा कितने गंदे और गंदगी में लिथड़े लोग थे। दुरेद, तो क्या दुरेद अपनी बीवी और दिल्हाम के इस घिनौने चेहरे से वाकिफ था? हाँ शायद, तभी वो शादी के फ़ौरन बाद वहाँ से चला गया था। और दिल्हाम, वो भी तो अपने वलीमे की रात इसे लेके चला आया था। अना कहाँ थी इस सब में? वो ज़ोरों कतार रोते पीटते बेडशीट को सख्ती से पीछे बैठ के कोने पे सर टिका गई थी। इसे फरहान का दिल्हाम से खींचा खींचा अंदाज याद आ रहा था। इसका शर्माना लजाना अना को एक बार भी फिर से पछतावे गिरने लगे थे। उसका दिल चाह के हर चीज़ तहस नहस कर दे, वो ऐसा कर भी रही थी। आरजे के दिए गए वीडियोस के बाद तो वजह से टूट सी गई थी, लेकिन दिल्हाम का ये रूप इसके लिए वाकई नया था। वो तो इसकी कुल कायनात थी। कॉलेज के फर्स्ट डे से अब तक वो हज़ार इख्तलाफात के बावजूद भी इसी को गुमान में रही थी कि वो तन तनहा इस शख्स के दिलो दिमाग की सल्तनत पर पुरजमान है। कल रात दिल्हाम ने इसे कुछ गिफ्ट्स दिलाए थे, जो इसे सख्ती से कैरी करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन दिल की दुनिया तबाह हो चुकी थी। भला इस शख्स के लिए सजना संवरना मायने रखता था? रोते रोते इसकी हिचकी बंद हुई थी, जब नज़रें उठाए खुद को सामने आईने में देखा था। सुर्खी माइल गुलाबी आंखें शिद्दत गिरियाजारी से सूज चुकी थीं। वो उठ के आईने के सामने आ ठहरी थी, बेख्तियार ही अपना मुआवजा फरहान से करने लगी थी। जो भी था, वो इससे उम्र में छोटी थी और मासूम सी कली, शायद कि दिल्हाम के दिल पे इसका ही राज हो। मनफी सोचों के दर आते और दिल्हाम बख्त के साथ किसी और का तसव्वुर करते हुए सब कुछ तहस नहस करने को तैयार थी। फरहान, या ना हो कि
فرحان यहाँ ना हो के भी तुम्हारे और दिल्हाम बख्त के दरमियान मौजूद है। सिर्फ दिल्हाम बख्त ही क्यों, घर के किसी और फर्द को क्यों नहीं पता दुरेत और फरहान कहाँ हैं, और कहीं इसने रकाबत में दुरेत को नुकसान पहुंचा दिया हो तो। इर्द गिर्द सरगोशियों में ढले आरजी की आवाज़ पे वो तड़प उठी थी। दुरेत इसका बहुत प्यारा दोस्त था, और ये सच ही तो था कि कब फरहान और दुरेत का कोई अता पता नहीं था। अना का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। ये चुप तुम मौका देखते ही दिलाम बख्त के सेल से अटैच करोगी अना, हम इसे वॉश करेंगे। रम्स, फरहान और दुरेत कहाँ हैं? दिल्हाम बख्त का एक दूसरा रूप हम दुनिया के सामने लाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी? बोलो अना, तुम अपनी दोस्ती का हक अदा करोगी? आरजे की हिम्मत दिलाती आवाज़ में वो खुद को मजबूत करने लगी थी। वो शख्स की गिरी हुई शख्सियत की इंतहा देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि वो दोगला इंसान अमेरिका बेटा होकर मोहब्बतों का दावेदार कैसे बन सकता है। वो उलझी सी जले पाँवों की बिल्ली की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। जब दिल्हाम की गाड़ी के हॉर्न सुनते इसके पाँव थमे थे। वो सरहद से खिड़की की तरफ बढ़ी थी। इस पे आदत, गाड़ी से निकलते इसने टाई ढीली की थी, साथ ही कोट उतारते बाजू पे डाला, घड़ी की चेन खोलते हल्के से माथा मसला था। इससे पहले कि वो ऊपर को निगाह उठाता, वो बिना देर किए पीछे हटी थी और वॉशरूम में घुसते खुद को कंपोज करने लगी। दिल्हाम कमरे में दाखिल हुआ तो बिखरा रूम इसकी नफीस तबीयत पे असर छोड़ते तेवरी पे कई बल डाल गया था। अनादिल वो धारते हुए ऐसे आवाज़ें देने लगा था। कुछ न करके भी अना का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। अना बाल सुलझाते हुलिया दुरुस्त के बाहर आई थी। आप कब आए? ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए उसके करीब आई थी। तिल्हाम ने इसके चेहरे पे कुछ खोजने की कोशिश की, जो अनकही कहानियाँ बयान कर रहा था। ये सब क्या है? इसने एक नज़र रूम पर दौड़ाते उलझी सी आवाज़ में कहा था। ओह, ये पता नहीं, बस ऐसे ही मेरा पाँव रपटा तो सहारा लेने की खातिर चादर थामी और ये सब हो गया। अना ने हाथ आगे बढ़ाते फरमाबरदार बीवी की तरह इसका कोट थामना चाहा, पर तल दिल्हाम ने कोई जंबिश ज़ाहिर नहीं की थी, जो मुसलसल अना का चेहरा खोज रहा था। मैं ठीक कर देती हूँ ये, दिल्हाम के मूड के पेश नज़र कहते वो आगे बढ़ी थी। जब दिल्हाम ने आगे बढ़ते से बाजू से थामा और कोट पीछे को गिराया था। इसका अमल अना को कुछ भौंकला गया था। जब इसे खुद से करीब किए, इसकी खुशबू अपने अंदर उतारने को, इसके बालों पे चेहरा छुपाने की सही करने लगा। इस अनचाही गुर्बत पे अना का चेहरा तब उठा था कि एक बागी आंसू पलकों की पार तोड़ते हुए बाहर आया था। बहुत डर लग रही हो मिसेस दलहाम बख्त, क्या बहुत मिस किया था मुझे? एक हाथ सख्ती से इसके कमर पे गड़ा था, जबकि दूसरे हाथ से इसके चेहरे पे आए बालों को हटाते इसकी आंखों में झांका था। अना ने नज़रें जुराई थी। जानती हो इस वक्त मेरा दिल क्या चाह रहा है? इसके चेहरे का बखौर जायज़ा लेते वो पूछ रहा था। क्या? वो खोई खोई सी दिल्हाम को देख रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की हंसी की पोशीदा असरार जानना चाहते थे, पर आंखों से। क्यों ना हम फरहान और दुरेत की तरह एक लॉन्ग हनी मून ट्रिप पे चलें? यहाँ की कसरत सर उठाने को फुर्सत नहीं दे रही है। अना चौंकी थी। इतने दिन बाद फरहान का जिक्र हो रहा था। वो दिल्हाम को बखौर देखने लगी। शायद कि मोहब्बत की कोई रम्ज़ महसूस दिल्हाम को इसकी मशकूक हरकतें तैश दिला रही थी। अनादिल, गंभीर आवाज़ के गर्म सांस बेहद पास से उभरी तो वो होश होश में आई थी। क्या? उसका दिमाग एकदम से खाली हुआ था। दिल्हाम इसे हमें बेड पर लाया था। कहाँ खोई हो तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अंदाज मेहरबान, लहजा नरम था। अना ने नफ़ी में सर हिलाया था। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? वो उसके माथे पे हाथ रखते बोला तो अना ने इस्बात में सर हिलाया। हाँ हाँ, राइट। मैं फ़्रेश होके आता हूँ तो कहीं बाहर चल के डिनर करते हैं। उठते हुए इसके माथे को चूमा था और वॉशरूम में घुसा। अना ने कब से रुकी सांस बहाल की थी। इसकी नज़रें तेज़ी से इर्द-गिर्द का जायज़ा ले रही थी। तभी इसका ध्यान दिल्हाम के सेल की तरफ गया था। चोर नज़रों से वॉशरूम को देखा, फिर फुर्ती से दिल्हाम का सेल पकड़ा, पर मोबाइल पे लगा पासवर्ड इसका मुँह चढ़ा रहा था, जो कि वो बदल चुका था। अब इसके पास कोई चारा न था कि वो आरजे की बात पर अमल करे। तभी वो सेंसर चिट इसके सेल से कवर हटाते बैग पे अटैच की थी। लम्हों की कार्रवाई करते हुए सेल मखसूस जगह पे रखते आरजे को डन का मैसेज छोड़ते अपना सेल लिए कमरे से निकल गई थी। दिल्हाम कमरे में आया तो वो वहाँ नहीं थी। कुछ सोचते हुए बाहर आया तो वो इसे बेचैन सी लॉन्च में वॉक करती दिखाई दी थी। दिल्हाम चाह रहा था वो इसे एतमाद में लेते, खुद ही सब बता दे, पर शायद उसके दिल में अपना इतना डर बिछा गया था जो इससे बातें छुपाने लगी थी।
ان دونوں کے درمیان کی بد اعتمادی میں قصور ان دونوں کا ہی تھا۔ اگر وہ دلہام کے ماضی کو لے کر تانا زنی نہ کرتی تو شاید وہ اس سے یہ راز نہ چھپاتا، پر انا نے اس کے ٹرسٹ کو غلط معنی دیے تھے، تبھی وہ بھی اپنے راز رکھنے لگا تھا۔ وہ نتیجن وہ بھی اس پہ اعتماد نہیں کر رہی تھی۔ انادل وہ سست روی سے اس کے پاس آیا تھا، جو اپنے عمل کے صحیح اور غلط ہونے کے توازن میں کھلی تھی پر پرزور انداز میں چونکی تھی۔ چلے، دلہام نے پھر سے ہلکا پھلکا انداز اپنایا تو انا نے بھی قدم آگے بڑھائے تھے۔ دل کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا، پچھتاوے گرنے لگے تھے، پر وہ دل کی صدا پہ کان دھرے بغیر خود کو صحیح کہتے مطمئن کرنے لگی تھی۔ جلد ہی وہ سیل اور گاڑی کی کیس لیے اس کے پاس آیا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ سجی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے یا مسکرانے کی ایکٹنگ کر رہے تھے جو انہیں بہترین ایکٹر ثابت کر رہی تھی۔ دونوں کو ہی مکمل طریقے سے اپنے جذبات پہ کنٹرول تھا۔ دل گاڑی میں چھائے سناٹے کو انا کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا مجھ سے پہلے کبھی آپ نے کسی کو چاہا تھا؟ انا کے سوال نے دلہام کو اچھا خاصا شوق دیا تھا۔ بے ساختہ پاؤں گاڑی کی بریک پہ پڑا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو نادل، اس سوال کا جواب خود سے لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز سیکھا تھا۔ میں آپ کو کبھی نہیں جان سکتی۔ وہ منہ کے زاویے بناتی باہر دیکھتی بولی تھی۔ دلہام کا کہکما گجا تھا۔ وہ رخ مڑے مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے یہ کہکما دلہام کو پاگل ظاہر کر رہا ہو۔ او سوری، ایکچولی یہ سننے میں کافی عجیب لگ رہا ہے نا، جس لڑکی کو دلہام باغ اپنی آتی جاتی سانسوں کا ضامن سمجھتا ہے وہی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ امیزنگ! دلہام کی آواز میں مایوسی کی آمیزش واضح تھی۔ تم سوال گول کر رہے ہو، وہ چیخی تھی۔ دلہام کو اس کا ریاکشن بہت عجیب لگا تھا۔ تم بتا دو، ایسا کیا ثبوت پیش کروں کہ تمہیں اپنے شوہر پہ یقین آ جائے؟ لمحوں کی شرارت ہوئی تھی۔ وہ پزل گیم کھیلنے پہ آمادہ نظر آ رہا تھا، تبھی گاڑی روکتے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ صرف ہاں یا نہ؟ انا کو جواب چاہیے تھا۔ شاید تمہیں میرا جواب پسند نہ آئے۔ دلہام کا انداز بہت سنجیدہ ہوا تھا۔ انا کا دل پورے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی تھی تو کیا وہ فرحان اور اپنے ریلیشن کا راز منکشف کرنے والا تھا؟ اس کا رواں رواں سماعت بنا تھا۔ دلہام کی نگاہوں نے اس کے الجھے چہرے سے آنکھوں اور پھر لبوں کا سفر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان نگاہوں کی گزارشات سے معنی خز کر پاتی، دلہام نے اپنے لبوں کا پہرا اس کے لبوں پہ بٹھایا تھا، گویا اسے انا کے فضول سوالات بہت برے لگے تھے۔ بولنے پہ بھی پابندی عائد کر دی۔ وہ اس کے عمل پہ بے چین بیٹھی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی چارکول کی سیاہ سڑک رات کی مکمل سیاہی میں ڈوبی تھی، جو ذرا کے ذرا پاس سے گزرتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ سے روشن ہوتی اور پھر رات کی سیاہی اوڑھ لیتی۔ وہیں ارد گرد پہاڑوں پہ پڑی سفید روئی جیسے برف اس خاموش رات کا حصہ بنتے اپنے اندر بہت سے اسرار چھپا لیتی تھی۔ دلہام کا ہاتھ انا کی سیٹ کے بیک کی طرف بڑھا تھا، جیسے ریلیکسنگ موڈ میں لاتے ہوئے انا کی آنکھوں میں درج تحریر کو دلچسپی سے پڑھنے لگا تھا، جو اس کی بے خودی سے نظریں چرا رہی تھی۔ دل وہ گھبرائی تھی۔ دل انا کے بغیر تھا ہی نہیں۔ انادل دنیا میں دلہام بخت کی محبت کو پاپنے والا کوئی پیمانہ ہوتا تو تم خود پہ نازا ہوتی کہ تم وہ واحد لڑکی ہو جو روز اول سے دلہام بخت کے دل کی سلطنت پہ راج کر رہی ہو۔ شاید مجھے بتانے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، پر حقیقت یہی ہے نا دلاور سے انادل کا یہ سفر تم نے دلہام بخت کی سانسوں کو مستعار لے کے طے کیا ہے۔ دلہام کے لفظوں نے ہاتھوں سے عمل کا سہارا لیا ہوا تھا، جو اس کے چہرے تو کبھی بال سہلا رہے تھے۔ دلہام میں خاموش، بالکل خاموش۔ انادل تم چاہتی ہو نا آج میں تم پہ اپنی ہستی کے راز منکشف کروں تو سنو، میرا ہر راز تم ہی ہو، ہر راز تمہاری محبت میں پناہ ہے جس کی حد تم پہ آ کے ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا تھا۔ انا کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ انہونا چل رہا تھا تو دل پچھتاووں کی بستی کا باسی بن رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے فیصلہ کیا تھا دلہام کو سب سچ بتانے کا، عارضی اور اس کی باتیں جانے کیا سچ تھا کیا جھوٹ۔ دل وہ اس کی سننا نہیں چاہتا تھا۔ تم سے بھلا بہتر کون جانتا ہوگا دلہام بخت کے، گویا کہ اس سے ٹکڑوں میں بٹی ہستی کو تم نے آگے یکجا کیا اور تمہاری محبت نے تو زندگی جینے کا نیا سبق دیا ہے۔ انادل اور مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ تم میری ہو اور تمہارے ہونے سے میں ہوں۔ کبھی کچھ نہیں مانگوں گا تم سے انادل، ماں سوائے اس کے تم مجھ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ ایک پھونک اس کے چہرے پہ مارتے مسکرایا تھا اور ذرا سا جھکتے ایک بار پھر سے اپنا عمل دہراتے اس کے لبوں کو چھوا اور ایک پر یقین سا لمس اس کے کندھے پر دیتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔
अना कुछ देर पहले की मोहब्बत भरी शरारतों और गुस्ताखियों में मदहोश सी बैठी थी जब दिल्हाम ने अलवही जज्बों की चमक लिए मुस्कुराहट लबों पे सजाई थी और गाड़ी में सहरदारी करता म्यूज़िक ऑन किया था। मुख्तसर मुलाकातें उम्र भर की बेचैनी तेरे इश्क ने अक्सर राहतें मेरी छीनी। मौजूद है तो मेरी हर सांस में तू है, बस तू है मेरे एहसास में। तेरे चेहरे से अपना मेरी नज़र हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, एक तुझ पे ही मैं ही फ़िदा हूँ मैं। इल्हाम के लब भी गुनगुना उठे थे जबकि एक हाथ से ड्राइव करते दूसरा हाथ में इसका हाथ थामे बार बार लबों से लगा रहा था। अना का दिल भर आया था, वो इसे चीट कर रही थी। वो बज़ाहिर बाहर का जायज़ा लेते अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने की तकव्वुत कर रही थी। एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते दिल्हाम इसका हाथ थामे बाहर आया था। रेस्टोरेंट के सामने सर्दी से बचने को अलाव दहका दहका गया था, जिसके इर्द गिर्द बहुत से नौजवान मरी कबीले का रवायती रक्स पेश करते नजर आ रहे थे। दिल्हाम इसलिए वहाँ आया था जहाँ हाजरीन के लिए बाहर आरजी नश्र बनाई गई थी और काफ़ी ज़्यादा सियाह भी इस तफरीह से महफूज हो रहे थे। इट्स लुक्स वाओ। वो इसका मूड ठीक करने को बोला था। दिल्हाम को यकीन था कुछ देर देर तक वो जब नॉर्मल होगी तो इससे अपनी उलझनें ज़रूर शेयर करेगी। हाँ, अना खुद तरसी का शिकार हो रही थी लेकिन दिल्हाम की तरफ देखते ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पे सजाई थी। रिवायती फ़ोक म्यूज़िक पेश किया जाने लगा था जहाँ मुख्तलिफ इलाकाई गाने गाए जा रहे थे। दिल्हाम का सैल बज उठा तो सामने मौजूद नाम ने अना की हसायत बेदार की थी, जहाँ दुरेत का नाम जगमगा रहा था। तेरे दिल विच किड़ियाँ, तेरे मन विच किड़ियाँ। सच तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हें गलत राहें किसने दिखाई हैं, तुम्हें किस जालिम ने सही राह से भटकाया है और दोस्तों से धोखाबाजी सही सिखाई है। अना का दिल गायक के लफ्ज़ों पे सहमा था, जैसे सामने मौजूद इससे सरापा सवाल था। ज़मीर की लानत मलामत पड़ी थी और एक मुअज़्ज़म फ़ैसला लिए वो वहाँ से खड़ी हुई। दिल्हाम कुछ ही फासले पर मौजूद था जो अभी तक दुरे से कॉल में बिजी था। मुझे तुमसे बात करनी है। अना का मैसेज दूसरी तरफ से मौजूद शख्स के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट खुला गया था। इसने सिम निकालते दांतों में चबाई थी। वैसे भी अना अब इसके लिए किसी काम की नहीं रहती। जिस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था वो मुकम्मल हो गया था। अना ने कुछ देर जवाब का इंतज़ार किया और बेचैनी हदसुदा हुई तो खुद ही कॉल मिला ली, पर दूसरी तरफ का नंबर नॉट रीचेबल था। एक दो बार की ट्राई करने के बाद इसका दिल चाह रहा था कि मोबाइल सामने मौजूद दरख्त पे दे मारे। वो डरी सी थी जब पास कहीं दिल्हाम की आवाज़ आई थी जो इसे ढूंढ रहा था। वो फ़ौरन पीछे पलटी और इसके पास आई थी। कहाँ चली गई थी तुम? परेशान हो गया था मैं यार। वो इसे बाजू के घेरे में लिए दोबारा इसी मुकाम पर आया था। दिल, मैंने कुछ कहना था तुमसे, वो मैं ओहो, बातें करने के लिए पूरी रात पड़ी है, चलो पहले कुछ खाते हैं। वो इस सजी महफिल के पास से गुजरते बोला था जबकि अना की समाते जमी झंझोड़ती इन आवाज़ों पे टिकी थी। जिन आँखों से प्यार करते हैं इन्हीं आँखों को रुलाया है। मुझे इतना बता दो प्यारे, लड़ना किसने सिखाया है? एक शिकवा गना निगाह अपने साथ चलते दिल्हाम पे डाली जिसके लब आप ही आप मुस्कुरा रहे थे। टेबल पहले ही वो रिज़र्व करवा चुका था, साथ ही खाना सर्व किया है तो वो गाय बाय गए इसके उलझे नकूश पे निगाह डालते से हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। दुरेत कब आ रहा है? फरहान का नाम लेते हुए अजीब सा महसूस हुआ तो इसने डायरेक्टली दुरेत का पूछा था। बहुत जल्द, अकेला थोड़ी है ना वो, फरहान भी है इसके साथ। इसे जाने क्यों शक गुजरा कि फरहान के नाम पे मुस्कुराता था जबकि हकीकत ये थी इसका दिमाग हर आम चीज़ को भी बहुत ख़ास करके महसूस कर रहा था, क्योंकि वह हर सोच को आरजे की सोच से देख रही थी। और रम्स अना ने जानबूझकर एक नाम लिया था। दलहाम के तेवर पल में बदले थे, इसके हाथ खाने से रुके थे। वो मर चुकी है हम सब के लिए, आइंदे इसका जिक्र कम से कम मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। लब पीछे वो सख्ती से बोल रहा था। अन्ना को वो दुनिया का सबसे दोगला शख्स लगा था। दो तीन लुकमे जहर मार करते वो दोनों ही उठ के खड़े हो गए थे। घर आते एक थकन का एहसास अपनी गिरफ्त में लिए हुआ था। वो आते ही बिस्तर पे दराज हुआ था जबकि अना खुद को फजूल कामों में उलझाए हुई थी। अना दिल बेचैनी से करवट बदलते आखिर से अना को बुला लिया कि इसके बगैर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ वो लॉन्च में बैठी यकटक टीवी पर नज़रें निगाहें जमाई हुई थी जो ऑफ था। क्या यार, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नाइट ड्रेस में मलबूस हाथ बढ़ाए इसे अपने पास बुला रहा था जो बेडरूम के दरवाजे में ही ठहरा था। अन्ना ने गर्दन ऊंची किए इसे देखा, फिर उदासी से दोबारा सर झुकाया पहली वाली पोजीशन में चली गई थी।
दिल्हाम को लग रहा था वो रम्ज़ वाली बात पे अपसेट है और शायद दिल्हाम से हट भी तभी कुछ सोचते उसके पास आया था, जो दोनों पाँव पसारे सोफ़े पे बैठी थी। दिल्हाम इसके बिल्कुल करीब बैठा था। क्या हुआ, उदास क्यों हो? इसके बाल सहलाते हुए पूछा था। अना ने सर उठाते से देखा, जिसकी आंखों में अजनबियत सी तारी थी। दिलाम को गिल्ट फील हुआ था। सॉरी यार, मैं खामखा ओवर रिएक्ट कर गया। इसने जो कुछ किया मेरे नज़दीक वो काबिल माफ़ी नहीं है। तभी रम्ज़ कहाँ है कि आपने इसका और मूसा का निकाह करवाया है? वो फिर से दबी राख कुरेदने लगी थी। उफ़ माई स्टूपिड वाइफ़ी, ये वक्त शायद किसी और को नहीं बल्कि हम दोनों को डिस्कस करने का है। चलो उठो, मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। दिल्हाम ने खड़े होते ही इसे भी अपने हमरा खड़ा करना चाहता भी जब भी इसके सवाल को इग्नोर कर दिया था। मुझे नींद नहीं आ रही, वो अपना हाथ छुड़ाते बोली तो वो बेबस हुआ। अच्छा चलो, अच्छा बताओ, सुलह सफाई की कोई राह? वो उसके पाँव के करीब बैठते हुए बोला था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, अना का अंदाज जान छुड़ाता था। ओके तो फिर रूम में चले? नहीं, क्या हम मूवी देख सकते हैं? अना की बात सुनते दिल ना चाहते हुए इनकार नहीं कर सका था। अना ने उठ के टीवी ऑन करते इसके साथ पड़ी पेन ड्राइव को इसमें जस किया और वापस दिल्हाम से कुछ दूर बैठी थी। दिल्हाम ने बखौर इसकी हरकत देखी और इंतहाई टेढ़ाई का मुजाहरा करते इसके पास जाके बैठा था। वो उसके कंधे पर सर टिकाया, इसकी की नज़रों के इर्तिकाज़ में निगाहें टीवी पे जमाई। जैसी अना के लिए इस वक्त इस टीवी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। जब इसे झटका लगा था जहाँ आरजे और दिल्हाम की पुरानी तस्वीर स्लाइड की सूरत में चल रही थी। दिल्हाम का चेहरा पल में जर्द पड़ा था, जबकि अना की नज़रें टीवी से हटते दिल्हाम के चेहरे पे जमी थी। दिल्हाम के लिए तस्वीर शॉकिंग नहीं थी, लेकिन इनका इस तरह यहाँ पे चलना काफ़ी शॉकिंग था। ये क्या बकवास है, बंद करो इसे। होश में आते हुए अनाया अनाया पे दाड़ा था। भाई हमारी मोहब्बत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि फरहान इन्हें नहीं मिली। एक जानी पहचानी आवाज़ पे वो पलटा था, जहाँ रम्स आरजे के सामने ठहरी कुछ बोल रही थी। दिल्हाम की आंखों में मिर्चें भरी थी। अगले पल तो ज़मीन पाँव से सिरकी थी। दिल्हाम के गले लगी फरहान नहीं बल्कि उदरेत की संग थी, जिसे थोड़ी से रद्दोबदल से बदल दिया गया था और दिल्हाम दिखाई दे रहा था। अगर दिल्हाम भी होता तो शायद तस्वीर में फ़र्क ना पड़ता, लेकिन फ़र्क फरहान का नींद भराना वजूद कर रहा था। वो इस वक्त की तस्वीर थी जब दुरेत इसे आरजे की फ्लैट पे पहली बार बचा लाया था, जबकि आरजा के लगाए गए कैमरास में ये न मंजर फिट था और वक्त आने पर इसने अना को बाखूबी बेवकूफ़ बनाया था। ये सच है, बुरा लगा क्या? रेशम के लिबादे उड़े गंदे लोगों का सच। अना एक एक लफ्ज़ जहर में डूबे बोली थी। दिल्हाम ने धारते हुए मुठियाँ भींची थी। क्यों बुरा लगा? हैरत है ना, बीवी को आरजे के साथ देखकर 400 लोगों में थप्पड़ मारने वाला शख्स अपनी असलियत ज़ाहिर होने पे चुप क्यों? क्या आज आप इस रवैये की हकदार नहीं जो आपने अपनाया था मुझसे? वो दोनों हाथ सीने पे जमाए तसल्ली से बोली थी, जबकि दिल्हाम तो पहले आंधियों की जद में था। मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या बकवासियात सोच रही हो, मगर मुझे ये ज़रूर जानना है कि तुम आरजे से किस हक़ से मिली और क्या-क्या बकवास की है इसने। वो उसके कंधों से पकड़े सख्ती से जरा कर रहा था। क्यों क्यों बताऊँ आपको? ये सच छुपा रहे थे ना कि बहन भाई का नाम इस्तेमाल करते आप और फरहान। शटा बना दिल, एक लफ्ज़ और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका चेहरा हाथ में थामे खड़ा था। ऐसे भी आपसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है मिस्टर दिल्हाम बख्त। वो इसे झटकती वहाँ से निकलती गई थी, जबकि दिल्हाम दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़े परेशानी से टहल रहा था। वो इस बेवकूफ़ लड़की से हर उम्मीद रखता तो जो इस वीडियो देखने के बाद इल्हाम की ज़िद में हर हद तक जा सकती थी। बहरहाल गलतफ़हमी में ही सही, महबूब का बँटवारा किसी सूरत इसे भी कबूल नहीं था। कितनी देर खुद को सँभालने के बाद वो कमरे में आया था। वो जो बेड पे घुटनों में सर दिए बैठी थी, इसकी आमद पे सर उठाया था। दिल्हाम इसके करीब आया था। मैंने अपनी राहें आपसे अलग करने का फ़ैसला कर लिया है मिस्टर दिल्हाम बख्त। अना की आवाज़ ने गहरी खामोशी के जमूद को न सिर्फ तोड़ा था बल्कि दिल्हाम को मारने की कोई हद तक नहीं छोड़ी थी। वो लड़की बार बार इसका ज़ब्त आज़मा रही थी। अनादिल, क्या तुम चाहती हो मैं टिपिकल शौहर की तरह यहाँ बैठ के अपनी सफाइयाँ पेश करूँ? वो इसके सामने आकर रुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ आप रिवायत को बरकरार रखते, दो क्या चार चार बगल में लेके घूमें, पर मेरी ज़िंदगी को दिल्हाम बख्त नामी अजाब से आज़ाद करा दें। अना के अंदाज में कोई रियायत नहीं थी। देखें अना मोहतरमा, ऐसा कुछ मत बोलें जिसमें बाद में पछताने का मौका भी ना मिले आपको। वो कुछ नरम पड़ा था, शायद इसका भड़कना मामलात मज़ीद ख़राब कर सकता था, पर तंज़ और आप जनाब नहीं छोड़ा था। इससे ज़्यादा क्या और ख़राब होगा? वो बड़बड़ाई थी। अनादिल देखो, हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। दिल्हाम का वो काम जो बहुत पहले करना चाहिए था, वो इस पर अब माइल नज़र आ रहा था। मुझे कोई बात नहीं करनी। वो ज़िद्दी अंदाज में कहते बेड से
उतरी थी जब भी दिल्हाम ने इसकी कलाई थामे रोका था। देखो मैं तुम्हें हर बात क्लियर करता हूँ। दिल्हाम गिड़गिड़ाया था, शायद क्यों खुद पे बीती तो चिल्ला उठे, सहन नहीं हो रहा ना अपने किरदार पे उंगली उठी को बर्दाश्त करना, पर सुनने के आपके मैं जो उंगली उठी इसे उठना उड़ना अच्छे से जानता हूँ मैं। मसला ये है कि यहाँ मेरी नया मेरे अपने डुबोना चाहते हैं। एक और मामूली से झटके से वो इसके बेहद करीब आ चुकी थी। पर मुझे आपके साथ नहीं रहना, सुन रहे हैं ना आप मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसका कोई किरदार ही ना हो। इसकी आंखों और ज़बान से शोले निकल रहे थे। गुलाम का दिल चाह रहा था दो लगा के इस लड़की का दिमाग ठिकाने ले आए, लेकिन पहले भी कई बार वो इससे ज्यादती का मर्तकब हुआ था, पर इसी के अंदाज में जवाब देना जैसे लाजिम हो गया था। मुझे भी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना मिस अना दिलावर, जिसके सामने दिलाम वक्त को कदम कदम पे अपने किरदार की गवाही देनी पड़े। बेड से तकिया उठाते वो कमरे से निकल गया था। अना का दिल डूबा था तो क्या वो इसे छोड़ देगा, ये सोच ही जानलेवा थी। जब भी वो भी तेज़ी से इसके पीछे आई थी। क्या कहा आपने, आप मुझे छोड़ देंगे? वो सदामाती कैफियत में थी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। बद किरदार आदमी के साथ नहीं रहना चाहती ना तुम? वो लफ्ज़ से बातें औंधे मुँह गिरते सोफे पे मुँह छुपा गया था। तो फरहान, शट अप अनादिल, एक और लफ्ज़ नहीं वरना मैं हर लिहाज ख़त्म कर दूँगा। वो सुर्ख अंगारा आंखों इस पे गाड़े बोला था। दलाम का लहजा सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त था, जो अना ने पहले कभी नहीं देखा था। बात ये थी कि सारी बात किरदार पे आके रुक गई थी। वो वजाहत देना नहीं चाहता था, जबकि अना किरदार की गवाही चाहती थी। दोनों ने वो रात चलते कुर्ते हुए गुजारी थी। नींद तो जैसे आंखों से रूठ गई थी। अना की आंखें बार बार भीग जाती थी। कुछ अनहोनी का एहसास बेचैन कर रहा था। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी जब इसके सेल की नोटिफिकेशन टोन बजी थी। दिल्हाम की तरफ से एक वॉइस नोट शेयर किया गया था। इसे दिल्हाम की हरकत अजीब लगी। जो कदम दो कदम की दहलीज पे पार बैठा इसे मैसेज कर रहा था। वो इसे इग्नोर करना चाहता था, पर कुछ सोचते इसे ऑन किया था। कोई टूटा तारा मुझे गम दे किया है, अपनों ने जो ज़ख्म दिया है। दिल की धड़कन थमी थी। वो वॉइस नोट आना की आवाज़ में रिकॉर्ड था, जो इस वक्त दिल्हाम का तंज महसूस हो रहा था। आना की सोचें एक बार फिर से इस पे मरकूज हो गई थी। दिल्हाम का दिल बेचैन और मुस्तरब था। वो जितना मामलात को ठीक करना चाह रहा था, अना ने इतना उलझा दिए थे। कुछ सोच के इसने दुरैत को कॉल मिलाते फरहान की सिक्योरिटी के मुतालिक कुछ मजीद इंस्ट्रक्शन दी थी। दूर कहीं मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई तो वो उठ खड़ा हुआ था और रब के हाथ सरबसूज होते अपने घर की गलियों की इज्जत और अमान खुदा के सुध करते दुआ करने लगा था। अना से मुलाकात के बाद वो मसरूर था, लेकिन बहुत बेचैन भी था। इसे अना पे यकीन नहीं था कि वो इसका साथ देगी या नहीं। शाम ढले आने वाले अना के मैसेज ने गोया इसे कामयाबी से हमकिनार किया था। वो जल्दी से सिस्टम ऑन के दिल्हाम के सेल के तमाम फंक्शन अंडर कंट्रोल करने लगा था, और जैसे ही सेंसर ने दुरैत का नंबर ट्रेस किया तो वो अलर्ट हुआ था। कॉल की लोकेशन ट्रेस करने लगा था। इसके लिए कामयाबी का पहला सिरा था कि वो जान चुका था कि दुरैत और फरहान पाकिस्तान में ही है। इससे आगे के मामला जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तभी इसने अपने आदमियों को अलर्ट जारी किया था। तकरीबन रात के 3 बजे दिल्हाम के सेल से एक बार फिर से दुरैत से रब्ता किया गया था। दिल्हाम की गुफ्तगू से यही अंदाज़ा कर पाया था कि अना दिल्हाम को आरजे के मुताबिक खुल के बात कर चुकी है। वो और ज़्यादा तेज़ी से मामला निपटाते सुबह दुरैत के दरवाजे पे पहुंचा था। वहीं दुरैत की ज़रा सी गफलत पे फरहान का भर आने से एक बार फिर आरजे के पास ले जा चुका था। इस वक्त इसकी सांस की टोर आरजे के हाथ में थी। वो यकटक अपने सामने पड़ी फरहान को देख रहा था। वक्त गुजरते वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, और दुरैत की मोहब्बतों का एजाज़ था कि इसकी मोहब्बत की महक फरहान के वजूद से नज़र आती थी। फरहान प्रेग्नेंट थी, और आरजे को जब डॉक्टर ने बताया कि इसका मजीद खून इसके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, तो वो पागल हो उठा था। इसी इसी याद पड़ रहा था कि वो उसका लकी चार्म थी। मुत्तसिद तकफीर से ताल्लुक़ रखने वाला रहमान जिलानी जब दिल्हाम बख्श से मिला तो इसकी अमारत ने गोया दोस्ती की बुनियाद रखी थी। ऐसा कहना गलत नहीं था कि दोस्ती तो सिर्फ दिल्हाम बख्श ने ही की थी, जबकि आरजे ने एक अमीर फैमिली के लड़की का सहारा खुद को खड़ा किया था। आरजे को गाने का शौक था, और दिल्हाम इसका बेहतरीन सपोर्टर बन गया था। एक एक डायरेक्टर और म्यूजिकल कंपनी के पीछे भागते आरजे ने अल्लाह की ज़ात से हटके बंगाली बाबा और कई रूहानी कामलों के दर पे जा पहुंचा था। जब वो बिना सोचे समझे एलोमनाती दुनिया में कदम रखने लगा था। एलोमिनाती एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद इस वक्त की ज़रूरत बन गया था, जब साइंसदानों और मजहबी पेशाओं के खुदा और तख्लीक को लेकर एक जंग छिड़ चुकी थी।
سائنسدانوں کی انسان اور دوسری مخلوق کی تخلیق کو لے کر انسان بگ بینگ کی تھیوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے کی جانے والے دعوے، مختلف مذاہب کے گاڈ فادرز اور اپنے مذاہب کے پرچار کرتے گروہوں کو معصوم لوگوں کو رائے حق سے بھٹکانے کے لیے سائنسسٹس کی سازش لگ رہی تھی۔ سائنسدان اس کائنات کے خود بخود وجود میں آنے کے دعوے دار بنتے ہوئے انسان کو مختلف جانوروں کی جینیٹک کا تبدیلی بتاتے تو کبھی خدا کی ذات کو ماننے سے انکاری ہو رہے تھے، تو وہیں پر مذہبی پیشواؤں کو لوگوں کو مذہب کے نام پہ ذہنی غلام بنانے کے جرم میں کھلے عام قتل کیا جا رہا تھا۔ ادھر مذہبی پیشواؤں میں اپنے بچاؤ اور لوگوں کو سائنسدانوں کی باتوں میں گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے تھے، تو اپنے اپنے مذہب اور دیوتائی نظریے کو بچانے کی خاطر سائنسدانوں کے قہر سے بچ جانے والے لوگوں نے ایک عظیم تنظیم بنا لی تھی، اور پھر سست روی سے یہ کارواں بڑھنے لگا تھا۔ خود کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کرتے ایلومیناتی کے پیشواؤں نے لوگوں کو بہت جلد اپنی طرف راغب کر لیا تھا۔ کامیابی اور جسمانی ذہنی سکون کا موجب اپنے خداؤں اور دیوتاؤں کی پرستش کا کہہ رہے تھے۔ ایسے میں دنیا کے سو کالڈ رولرز سے ستائے لوگ اپنا سکون اور کامیابی ڈھونڈنے کو لوسیفر نامی دیوتا کے غلام بننے لگے تھے۔ فرحان کے خون نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، تو اپنی پستی کو بھی وہ لوسیفر کو ناراض کرنے سے منسوب کرتے پاگلوں کی طرح فرحان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فرحان کا ملنا گویا نہ گو سکون کا احساس دلا رہا تھا۔ سرسبز پہاڑوں کے دامن میں بنا وہ لوسیفر کی پرستش کا مسکن اس وقت فرحان کی سسکیوں سے جاگ اٹھا تھا۔ اٹھ جاؤ پیاری لڑکی، دیکھو تو میری منزل کتنی قریب آ چکی ہے۔ ایک سایہ اس پہ جھکا تو اس نے بھاری پپٹوں کی زد میں آئی پلکوں کو بامشکل کھولا تھا۔ آر جے، ارے واہ، تم نے تو پہچان لیا مجھے، چلو شاباش، اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، تمہارا زندہ رہنا میرے لیے کتنا ضروری ہے تم سوچ نہیں سکتے۔ آر جے نے اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھرتے پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ فرحان کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا جو رخساروں سے ہوتے بالوں میں جب سو رہا تھا۔ ارے کیا ہوا میری جان، اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں مجھے جینے نہیں دیتے؟ وہ پرزور احتجاج کرتے اس کا ہاتھ جھٹکتے بولی تھی۔ ارے میری معصوم جان، تم ہی نے تو سنوارا ہے مجھے، تو تمہارا ہی قصور ہے نا۔ وہ اسے چھونے سے باز نہیں آیا تھا، نازک سے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تم ایک بار ہی مجھے موت دے دو، وہ چیخی تھی، ساتھ ہی سانس پھولنے لگی تھی۔ آر جے نے وہاں موجود ڈاکٹر کو اشارہ کیا اور اس کے پاس سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب وہ دریت کی ضد میں گھر سے نکلی تھی۔ دریت کا خیال آتے ہی وہ مضطرب ہوئی جانے سے اسے نہ پا کے وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ دلہام کی آنکھ بار بار رنگ ہوتی سیل کی آواز پہ کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے سیل اٹھایا، دریت کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے کال پک کی تھی، جبکہ دوسری طرف سے دی جانے والی خبر نے گویا کچھ دیر اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ بھاگتے قدموں میں کمرے میں آیا تھا۔ انا جو کچھ دیر پہلے سوئی تھی اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا تھا۔ فرحان کہاں ہے انادل؟ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ انا خالی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے دلہام بخت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ آر جے نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے مختلف کیسوں میں پھنسا کے دلہام بخت کو گھر کے معاملات سے ہٹایا تھا، جس کا انجام بہت بھیانک نظر آ رہا تھا۔ فرحان کا بھلا مجھے کیسے پتا ہوگا؟ دلہام بخت وہ الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انادل، فرحان کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے آر جے کے ساتھ مل کے؟ بتاؤ فار گیٹس، بتاؤ فرحان کہاں ہے؟ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ انا اس کی حالت دیکھتی سہمی تھی۔ تم مجھے کل کی ایک ایک بات بتاؤ گی انا؟ بتاؤ مجھے کیا ٹریپ بچایا تم نے فرحان کے لیے؟ وہ بہت معصوم ہے انا، اگر اسے کچھ ہو گیا گاڈ پرامس میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ وہ سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جگڑے چیخا تھا۔ فرحان کے لیے اس کی دیوانگی نے انا کے دل میں مزید بدگمانی کی دراڑ پیدا کی تھی۔ دلہام بخت شاید اس کے عشق میں ڈوبا تھا، ایسے میں انا کا وجود بے معنی تھا۔ کیوں خاموش ہو تم؟ ہاں تمہاری تو خاموش رہتے سانس بند ہوتی تھی، پھر آج کیوں خاموش ہو تم؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ جب انا کی برداشت کی حد ختم ہوئی، اس کا مان ٹوٹ چکا تھا، یہ طے تھا کہ اسے دلہام بخت کی زندگی میں نہیں رہنا، تبھی اسے سب لفظ بہ لفظ سچ بتاتی چلی گئی تھی۔
तुमने मेरा सेल दलहाम की आवाज़ दुख में डूबी थी। इसी लम्हे दलहाम को अफ़सोस है कि इसने दूरे से राब्ता क्यों रखा था। सब ख़त्म कर दिया तुमने। अनाज सब टूटा हुआ बिखरा दलहाम ज़मीन पे घुटने टेक बैठा था जब इसके सेल पे मूसा की कॉल आने लगी थी। इसने वीरान निगाहों से इस नाम को देखा और आंखें बंद कर ली थी। रम्स। एक और नाम इसके दिमाग में गूंजा था। शायद रम्स इसे बता सके कि वो जहन्नुमी शख्स फरहान को कहाँ ले गया था। तभी कॉल उठाते इसने मूसा को रम्स को यहाँ लेके आने का कहा था। कुछ देर बाद एक और मुजरिम इसके सामने थी। अना ने तंजिया नज़रों से इन सबको देखा। कैसे लोग थे वो? मूसा इसे कहो यहाँ से चली जाए। अना की निगाहों का मफहूम समझते बावजूद कोशिश के वो खुद पे ज़ब्त नहीं कर रख सका था। अना बीबी मूसा ने दरखास्त निगार निगाहों से इसे देखा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये देखना है कि एमरे वक्त का बेटा किस हद तक। मूसा। दलहाम की आंखें सुर्ख हो रही थी। मूसा का दिल चाह रहा था वो अना को कहीं गायब करते। वो ऐसा कुछ करता। वो खुद ही पाँव पटकती बाहर निकल गई थी। मुझे माफ़ कर दें भाई, मैं बहक गई थी। रम्ज़ इसके पाँव गिरी थी। वहीं रम्ज़ की आवाज़ ने बाहर निकलती अना को तजस्सुम में बाहर रुकने पर मजबूर किया था। सिर्फ़ एक लफ्ज़ सच बोलो रम्ज़। रम्ज़, तुमने आरजे को यहाँ सब क्यों कहा? ये सब क्यों कहा? इसने टीवी ऑन करते इसकी वीडियो ऑन की थी। इसके अल्फाज में मूसा के दिल का दर्द पड़ा था। ये तो वाज़ेह था कि वो आरजे के इश्क में थी। जबकि रम्ज़ बेजान सी बैठी हुई सब देख रही थी। भाई वो एक-एक लफ्ज़ बा-लफ्ज़ अपना जुर्म कबूल करती गई थी। मूसा से निकाह के बाद एक अनदेखी कुव्वत इसे बार-बार मूसा से बांध रही थी। जबकि मूसा का सर्द और अकड़ अंदाज़ रम्ज़ को मज़ीद इसका दीवाना कर रहा था। एटीट्यूड लेवल का एग्रेसिव शख्स कब इसकी ज़रूरत बन बैठा इसे पता ही नहीं चला था। तभी वो अपनी दोस्त की मद में इसे दरबारों और पीरों फ़कीरों से मांगने जा पहुंची थी। ऐसी एक दिन वो एक इज्तिमा में शिरकत करने जा पहुंची जब आरजे की निगाह इस पे पड़ी थी। वो परेशान हाल से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी जब अपने नाम की पुकार पे पीछे मुड़ के देखा था। सच में फतरत हो गई थी जब आरजे को इतने वक्त बाद अपने सामने देखा था कि ये मज़ाहिया ख़ैस ने कि एक तरफ दी ग्रेट दिल्हम वक्त आलमी सतह पे एलुमिनाती के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे और उनकी बहन यहाँ है। आरजे ने तंजिया निगाह इस पे जमाई थी। तुम यहाँ आप? आरजे ने इसकी तस्दीक की थी। वो इसे इग्नोर करते आगे बढ़ना चाहती थी जब आरजे की आवाज़ ने इसके कदम रोके थे। मैं लाख बुरा सही दिल्हम वक्त से दोस्ती की लाज आज भी है, लेकिन मुझे कतई गवारा नहीं कि तुम इस राह पे आओ रम्स बेटा। आरजे का अंदाज ऐसा था कि रम्स को लगा जैसे सामने दिल्हम ही मौजूद हो। वो झटका खा के मुड़ी थी। बताओ मुझे तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ खींच लाई? ये रास्ता सही नहीं है रम्स बेटा। आरजे ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो पल में मोम होते से सक उठी थी। रम्स बेटा मेरे पास सब मेरे साथ आइए। कितने रूप थे इस बहरूपियों के। रम्स की आंखों पे जैसे पट्टी सी बन गई थी। वो भूल चुकी थी कि वही शख्स था जिसकी वजह से वो आज इन राहों पे आई थी। वो बहुत जल्दी इस पे ट्रस्ट कर गई थी। मोहब्बत एक उदासी आवाज़ में घुली थी। रम्स मुख्तसर अंदाज में इसे अपने और मूसा की कहानी बयान करने लगी थी। आरजी के लिए ये वक्त बाद वाकई शॉकिंग थे कि दिल्हम रम्स और मूसा के निगाह से अनजान है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि मूसा कभी दिल्हम के एनिगेस्ट जाके कोई फ़ैसला नहीं करता। भाई हमारी मोहब्बत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रम्स ने सस्की भरी तो आरजे के लब खुले थे। क्यों? आखिर क्या बुराई है मूसा में? शायद इन्हें मूसा इस हवाले से पसंद ना आए। रम्स हकीकतों से आगाह थी, फिर भी मोहब्बत ने बेबस कर कर छोड़ा था। तुम लौट जाओ रम्स और यहाँ कभी ना आना। सारी दास्तान सुनने के बाद आरजे ने फिर से सख्त रवैया अपनाया था। रम्स लौट गई थी, पर ये होने लगा था कि आरजे अक्सर इससे मिलने कॉल पे बातें करते दलहम और अपने दरमियान मौजूद गिल्ड को डिस्कस करने लगा था। ऐसी एक शाम वो फरहान का जिक्र ले बैठा था। मैंने फरहान के साथ ज्यादती की है, इसका मदावा भी मैं ही करूँगा। आरजे की आंखें बिखी हुई थी। क्या वो ठीक हो सकती है? रम्स ने आरजे पे यकीन कर लिया था। हाँ, रम्स कुछ मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं लोगों को पता है जो अपने पेशेंट को इसका आदी बनाते हैं। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? मुझे यकीन है जब फरहान ठीक हो जाएगी तो दलाम भी मुझे माफ़ कर देगा। मैं इससे जाके माफ़ी मांग लूँगा। अजय नदामत से सर झुकाए कह रहा था। रम्स ने इसका साथ देने की हामी भर ली थी। वो भटक गया था, अब राह रास्त पे आना चाहता था तो रम्स क्यों ना भलाई करती। पर बरहान की बदरेज ख़राब होती हालत ने इसे चौंकना किया था। वो आरजे से सवाल जवाब करने लगी थी।
आइंदा मैं इसकी मेडिसिन रिप्लेस नहीं करूँगी। सुना तुमने? वो चीख रही थी पर गला अगला बंदा जैसे सुन ही नहीं पा रहा था। बहुत जल्द ही आरजे ने शराफत का लबादा उतार फेंका था। एक वीडियो भेज रहा हूँ, ज़रा गौर करना। आरजे ने कॉल बंद करते साथ ही एक वीडियो भेजी थी। रम्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उसकी दोस्त के अपार्टमेंट की कुछ वीडियो थी जहाँ वो मूसा को खुद के करीब होने पे उकसा रही थी। दोबारा बजते सेल ने से चौंका दिया था। उम्मीद है मिजाज ठिकाने आ चुके होंगे। अब मेरी सुनो लड़की, तुम वैसी करोगी जैसे मैं कह रहा हूँ। फरहान को मेडिसिन दोगी तुम, वरना जानती हो अगर तुम्हारी दोस्त के अपार्टमेंट तक रिसाई हो सकती है मेरी, तो तुम इतनी मेरी पहुँच से दूर नहीं हो। वरना की सूरत ही नहीं, मैं सिर्फ एक बटन की बात है और ये वीडियो इसके साथ तुम्हारी एलुमिनाती के पैरोकार होने के कई एक सबूत मीडिया और दलाम के वक्त के सेल की जीनत बनेंगे। वो इसे मुकम्मल तस्वीर से आगाह करते कॉल बंद कर चुका था। रम्स का दिमाग माउफ होकर रह गया था। इसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अपनी मोहब्बत की खातिर वो तुरंत वक्त की मोहब्बत को सूली पे लटका दे। वो बेचैन रहने लगी थी। तभी आरजे ने इसे सुकून पहुंचाने को सिल्वर पॉइजन देना शुरू कर दिया था। अपने घर के रिश्तों से छुपन छुपाई का खेल इस वक्त मजीद सरदर्द बन गया जब तुरंत फरहान को यहाँ से ले गया था। आरजे अपनी साफ शिकस्त पे पागल हो उठा था। फरहान नहीं मिली, वो आरज़दा इसे बता रही थी। बकवास बंद करो, तुम अपनी लड़की जानती हो ना, अगर वो ना मिली तो तुम्हारा क्या हशर करूँगा मैं। वो इसे धमका रहा था। रम सहमी हुई डिप्रेशन में जा रही थी। वहीं रमूसा का इसे झटकना, आरजे का इसकी डर्स बंद करना इसे हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ इसके राजों का खुलासा सबसे पहले मूसा को हुआ था। फिर इस पे निगाह रखते इसने रम्स को खोज लिया था। वो बुरी बन चुकी थी पर अपनी पस्तियों की मज़ीद कहानियाँ सुनाते हुए बचे हुए रंग भी खोना नहीं चाहती थी। तिल्हाम और मूसा तासुब भरी निगाहों से इसे देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अना की सांस बंद होने को थी। इतनी भयानक हकीकतें। दिल्हाम को रम से ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा था जिससे वो फरहान को ढूंढ पाता। वो मायूस सा खड़ा हुआ था। जब भी मूसा भी इसके हमरा बाहर की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोलते इसका सामना अना से हुआ तो इसके चेहरे पे मज़ीद सख्ती छाई थी। दिल इन दोनों को जहन्नुम वसूल कर दो मूसा, क्योंकि मुझे फरहान इन दोनों से ज़्यादा अजीज़ है। किसी फ़िरौन की तरह हुक्म देते वो वहाँ से निकलता गया था। अना को पहली बार ठुकराए जाने के दर्द का एहसास हुआ था। मूसा और वो दोनों जा चुके थे। जितना दोनों इन्हें बर्बाद कर सकती थी बर्बाद कर चुकी थी। अब आस्तीन में छुपे सांपों से ज़्यादा इन्हें फरहान की फ़िक्र थी। वो डुबडुबाई आंखों से दिलाम बखों से दूर जाता देख रही थी। जब भी रम्स की नज़र इस पे पड़ी थी, वो भागते हुए इसके गले से आ लगी थी, जबकि वो छोटा सा कॉटेज इन दोनों की बलकती सांसों को सुनते रो रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि आने वाला वक्त इनकी ज़िंदगी को किस मोड़ पर लेके जाता था।